Hi students, welcome to Get in Bio World. Please like करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. So guys, today we will start our next lesson, Animal Kingdom. And in this lesson, we will see about how animals are classified on the basis of their structure and form and many more characteristics. Now first, when we look around, we see the different types of the animals and present, and these animals having the different structures and the different forms. As over the million of species animals have been described till now. अभी तक हमने क्या किया, बहुत सारे animals को describe कर दिया zoologist ने. Now that's why the need of classification is necessary, and it will become more important to classify the animals on the basis of their characters, and the classification also help in assigning a systematic position to newly described species. अभी हम classification first of all क्या करेगा, ये need ज़रूरी होगी describe the animals, and it also helping to assign a systematic position to newly described species. जो new species describe हो रहे हैं उसको position देने के लिए classification is more important for zoologists. That's why we need classification. Now first of all basis of classification. Now classification किसके basis पर होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा सबसे पहले ज़रूरी होता है classification के लिए, क्या basis है. First we see in spite of difference in structure and forms of different animal, there are fundamental features to common to various individual in relation to the arrangement of cell. बहुत सारे एनिमल्स के फंडामेंटल फीचर्स कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं इन स्पाइट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स. स्ट्रक्चर और फॉर्म्स को छोड़ डाले हम, एक्सेप्ट दिस स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर प्रेजेंट फॉर वेरियस एनिमल्स लाइक बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ द सीलम एंड द पैटर्न ऑफ द डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. Including all these are the characteristics of the animals. On the basis of these characteristics we classify the animal, and these features are used as the basis of animal classification, and some of them are classified discussed here. और कुछ को हमने discuss किए, means some characteristics are discussed here. Now first of all the level of the organization, and in this level of the organization all members of the animalia are multicellular. जितने भी animals है सारे के सारे क्या होगा, members ये kingdom के are the multicellular, means cell organism containing the many cells. All them do not exhibit the same patterns of organization of cell. और सारे के सारे animals कैसे करेंगे, वो same pattern follow नहीं करेंगे. They are multicellular but they do not show the same pattern of organization. An example, in sponges the cells are arranged as a loose aggregates, that is they exhibited the cellular level of organization. अभी example suppose इधर sponges को हमने लिए, and in this sponges the cells are arranged. अभी ये cells है कैसे arrange होते हैं, loose cell aggregates, means ऐसे दूर दूर लूज अटैच हो जाएंगे सब एक जगह ग्रुप में, एंड दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और इस टाइप का जो अरेंज्ड होते हैं सेल, इसको बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड सम डिवीजन ऑफ लेबर अकरिंग अमॉन्ग द सेल्स. और इसमें से जो ग्रुप के रहते हैं सेल्स के, इसमें से डिफरेंट ग्रुप्स परफॉर्मिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़, एंड दिस सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. इन सेलेंट्रेट्स क्या होगा, इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल मोर कॉम्प्लेक्स होता है. हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस. ये जो सेल होता है ये जो सेम फंक्शन करता है परफॉर्मिंग अरेंज्ड इनटू द टिश्यू. जो कॉमन परफॉर्म करते सेल वर्क उसको एक टिश्यू में अरेंज कर दिए, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी स्टार्टिंग में कैसा था, सेल अरेंज इन अ लूज्ड सेल और एग्रीगेट्स दे एक्सिबिट द सेलुलर एक्टिविटी लेवल. और परफॉर्म कैसे करेंगे, जो सेम परफॉर्म करेगा और साथ साथ में 2-3 सेल एग्रीगेट्स के तौर पे एग्रीगेट्स के से अरेंज हो जाएंगे इन लूजली एग्रीगेट्स. नाउ इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. इसमें थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है अरेंजमेंट. हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. अभी ये सेल है ये सेम परफॉर्म कर रहे फंक्शन आर टर्म्ड एज ए, इसको क्या टर्म किए, अरेंज एज ए टिश्यू. इसको टिश्यू का अरेंज कर दिए. नाउ हियर इज सम सेल परफॉर्मिंग द अदर फंक्शंस, एंड देन इट इज़ ग्रुप्ड और अरेंज्ड इनटू अ टिश्यू.
and means this tissue performing the different work, this tissue performing the different work, hence it is called as tissue level of organization. तो इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर ऑफ platyhelminthes and the other higher phyla where tissues are grouped together to form a organ. अभी इधर कैसे हो गए, टिश्यूज़ है मीन्स हायर लेवल चला जाता है, और इधर जो सेम जो टिश्यू परफॉर्म करते एंड दिस performing the same function of the tissues are grouped into a one form is which is called as organ, and it is specialized for a particular function. Some tissues are performing the same work, means these tissues, this tissue performing the same work, then it grouped into a वन ऑर्गन. इसको किस में फॉर्म करेंगे, वन ऑर्गन में. दिस टिश्यू परफॉर्मिंग द सेम वर्क और फंक्शन, देन इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द वन ऑर्गन. इसको किस में ऑर्गेनाइज करें, अ स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्मिंग द सेम टिश्यू इज कॉल्ड अ ऑर्गन. एंड ये किस में देखने में मिलता है हमें, platyhelminthes and the platyhelminthes and the other phyla. And in animals like Annelida, arthropod or molluscus, echinoderms and chordata. कुछ एनिमल्स लाइक annelids, arthropoda, molluscus and the echinoderms and chordata, organs have associated to form the functional system. Each system concerned with a specific psychological function. अब ये सारे के सारे एनिमल्स में स्पेसिफिक फंक्शनल सिस्टम फॉर्म करते, और ये फंक्शन किससे कनेक्टेड रहता, ईच सिस्टम कनेक्टेड विद अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फंक्शन, और हर एक सिस्टम का एक अपना फंक्शन होता है. दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये सिस्टम को बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑन ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़. और ये ऑर्गन्स लेवल जो पैटर्न रहता है, इसमें बहुत सारे वेरियस पैटर्न के कॉम्प्लेक्सिटीज़ फॉर्म हो जाते हैं, शो करता है ये. फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन platyhelminthes हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज ए बोथ माउथ एंड द एनस. अभी platyhelminthes लिए हमने इज अ एनिमल इन विच द सिंगल ओपनिंग, इसका बॉडी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा, विच एक्ट एज ए बोथ माउथ एंड एनस. ये सिंगल ओपनिंग कैसे एक्ट करेगा, बोथ माउथ एंड द एनस, मीन्स इसमें फूड इंटर भी होगा तो माउथ की जैसे एक्ट करेगा. व्हेन द फूड रिमूव आउटसाइड द बॉडी देन इट एक्ट एज ए एनस, मीन्स अ सिंगल ओपनिंग एक्ट एज ए बोथ माउथ एंड द एनस, एंड हिज इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इसलिए ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस. सिमिलरली अभी ऐसे ही उसके अपोजिट में क्या रहेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी जिसमें बोथ माउथ का पोर्शन अलग रहेगा और एनस वाला पोर्शन रहेगा. व्हेन द फूड इंटर इन द बॉडी फ्रॉम द माउथ देन इट excrete from outside the body with the help of the anus. That's why the different opening of the present in the complete digestive system. That's why in this the mouth and the anus are having the two different openings. Understand? In complete में क्या हो गया, incomplete में both mouth and anus are having the single opening, and the complete digestive systems having the both mouth and having the different openings. Similarly the circulatory systems may be two types. वैसे ही क्या हो गया, circulatory system होता है जो दो types के होते हैं. First of all see here, open type and second one is the closed type. First क्या हो गई, open type, and in this open type the blood is pumped out of the heart and the cell and tissues are directly bathed in it. First क्या हो गया, blood होता है जो पंप होता है, ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट से पंप होकर बाहर की तरफ आता है, एंड पासेस टुवर्ड्स द सेल एंड टिश्यूज डायरेक्टली बाथ इन इट. सी हियर थ्रू डायग्राम, दिस वन इज द हार्ट, ये क्या आ गया, ये हार्ट है, एंड इनसाइड दिस हार्ट द ब्लड इज पंप्ड चलता रहता है, इसमें पंपिंग होता रहता है ब्लड का, एंड इट पास्ड टुवर्ड्स द सेल एंड टिश्यू. इसकी आउटसाइड में क्या हो गए, सेल है, टिश्यू है, सारे के सारे इधर कलेक्टेड है, एंड दिस सेल एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट. डायरेक्टली पंप होकर बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगा, सारे डायरेक्टली इसकी तरफ बाथिंग स्टार्ट हो जाएगा. ये डायरेक्ट क्या होता है, सेल्स और टिश्यूज़ पर जाकर पड़ जाता है, तो बाथ दे गेट बाथ इन इट. नाउ नेक्स्ट वन इज द क्लोज टाइप, इन विच, ये कौन सी हो गई, क्लोज टाइप, एंड इन दिस क्लोज टाइप द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज.
अभी इस क्लोज टाइप है, इसमें क्या होगा, इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स। इसमें भी हार्ट में ही पंप होगा ब्लड, है ना। ये हार्ट से किधर आएगा, बाहर डिफरेंट बॉडीज का सेल है, टिश्यू है, बट डायरेक्टली बात होगा क्या इसके ऊपर, डायरेक्टली फॉरवर्ड होगा क्या, नो, थ्रू द सर्कुलेटेड सीरीज ऑफ दी वेसल्स। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड के सर्कुलेट कैसा होता है, सीरीज होते हैं, एक वेसल्स के, आर्टरीज के, वेंस के, कैपिलरीज के, सारे ये क्या सारे नाली है जो खून पंप पहुंचाने के लिए नाली होती है। इसको अलग अलग लोग अलग अलग ऑर्गन्स तक फॉरवर्ड करते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करते हैं ब्लड को। वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, जो अलग अलग डायमीटर्स का होता है, कोई छोटा बड़ा होता है, कोई बड़ा साइज़ का होता है। कैपिलरीज स्मॉलेस्ट होते हैं, आर्टरीज थोड़े बिग साइज़ के होते हैं, वेंस मिडल साइज़ के होते हैं, and inside these arteries, veins and capillaries, blood circulated through the different organs. Understand all of you? Now next one is the symmetry. Next कौन सा part है, symmetry. And animals can be categorized on the basis of their symmetry. अभी animals को कैसे categorize किए, on the basis of their symmetry. And sponges are the most asymmetrical. See, sponges, this is the structure of the sponges, and in this one is the center of the sponges. When any plane that passes through the center, और कोई भी एक प्लेन जो है सेंटर से पास किए हम, passes through the center, then the center does not divided them into two equal halves. तो इसके और इसका two equal halves में divide हो रहा है क्या ये body? No, this one is the smallest portion and this one is the largest size portion. This one is different portion and this one is the different size portion. That's why the any plane that passes through the center that does not divided into the equal halves. कोई भी प्लेन जब हम सेंटर से पास करते हैं बॉडी के, तो वो इक्वल पोर्शन में डिवाइडेड नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे आसिमेट्रिकल, आसिमेट्री, उसको क्या बोलेंगे हम, आसिमेट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन द एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी दैट डिवाइड्स इनटू ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाल्व्स। और कोई भी एक बॉडी पे हमने क्या किए, प्लेन को सेंटर से पास किए, तो ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइडेड हो गया, इनटू टू आइडेंटिकल हाल्व्स, दो सेम टू सेम हाफ में बॉडी डिवाइड हो गई, विच इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। तो इसको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। एंड दिस रेडियल सिमेट्री आर सीन इन द coelenterate, ctenophorus and echinoderms have this kind of the body plane. इसमें कौन सी बॉडी प्लेन होता है, रेडियल सिमेट्री वाला बॉडी प्लेन होता है। नाउ सी द एग्जाम्पल, रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है दिस वन। नाउ when we end plane is passes, जब हमने ये प्लेन क्या किया, इसमें पास किया सेंटर से, है ना, सेंटर से पास किया तो हम क्या हो गया, ये दिस साइड पोर्शन हैविंग द इक्वल सिमेट्री एंड दिस साइड ऑफ पोर्शन हैविंग द इक्वल सिमेट्री। दोनों पोर्शन में सेम सेम सिमेट्री फॉर्म हो गई। देखो इधर वाला भी इधर है, इधर एक आर्म है, इधर एक आर्म है, दिस वन इज ऑल्सो कंटेन वन आर्म एंड दिस साइड इज ऑल्सो कंटेन वन आर्म। दैट्स वाई व्हेन वी पास दी एनी प्लेन इनटू द सेंटर ऑफ द बॉडी, देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द टू सिमिलर हाफ्स, टू सेम हाफ्स, देन विच इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। अभी इसमें वही दिखाई दे रही है ना। नाउ दैट्स वाई सी हियर another animals like annelids, arthropods, where the body can be divided, और इसमें बॉडी किस में डिवाइड होती है, into two identical left and right halves। इसमें बॉडी क्या होती है, एंथ्रोपोड में एंड एनिलेट्स में बॉडी डिवाइडेड into two identical लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। एक राइट साइड होता है बॉडी का और एक लेफ्ट साइड होता है, उस हाफ में डिवाइड होती इन ओनली वन प्लेन, और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में होता है, विच इज़ कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। और ऐसी सिमेट्री को हम बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। सी when one plane is passes into the symmetry of this animal, then the body is divided into similar half position, left one similar and the right one is also similar. That's why this type of symmetry is called as the bilateral symmetry. Understand? Now our next topic is the diploblastic and the triploblastic organization. Now we see what is diploblastic and triploblastic organization. See here, animals in which the cells are organized or arranged in two embryonic layers. कोई भी एनिमल्स होता है जो अरेंज हो जाता है टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। एम्ब्रियोनिक लेयर होगी, इसमें इंटरनली विच इज कॉल्ड एज एंडोडर्म एंड एक्सटर्नली इज कॉल्ड एज एक्टो नो सी इंटरनल इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंडो and the outer layer is called as ectoderm. That's why
This type of the animals called as diploblastic animals. एनिमल्स का बॉडी जो होता है एम्ब्रियोनिक अरेंजमेंट कैसे होता है, 2 लेयर में अरेंजमेंट स्टार्टिंग होता है. द इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्मी एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म एंड दिस टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज द डिप्लोब्लास्टिक. मीन्स 2 ब्लास्ट होते हैं इसमें, एक्टो वाला एंडोडर्म एंड द इंडोडर्म. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. और इसका कौन सी एनिमल्स में होता है ये, सिलेंट्रेट्स. एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजो. अभी सेकेंड है, an undifferentiated layer of mesoglea is present in between the ectoderm and the endoderm. ये प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म में और एंडोडर्म में. Those animals in which they are developing embryo has been third germinal layer is mesoderm in between the ectoderm and endoderms are called as triploblastic animals. See, first of all, animals having the embryonic arrangement in 2 layer, external ectoderm and the internal endoderms called as diploblastic animal is coelentrates. So animals को बोलेंगे coelentrates. Finish. Now see here in figure diploblastic animals, and in these diploblastic animals the internal layer is called as endoderm and the outer layer is called as ectoderm. एंड बिटवीन दिस एक्टो एंड एंडोडर्म द मीजोगिलिया इज प्रेजेंट. क्या हो गया ये देखो, ये रेड कलर की लाइनिंग बता रही है इसमें. बिटवीन दिस एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म क्या प्रेजेंट है, ये मीजोगिलिया विच इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर. ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर लेयर ऑफ द मीजोगिलिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वन इज those animal in which developing embryo has a third germinal layer. अभी ऐसे एनिमल जिसमें थर्ड जर्मिनल लेयर फॉर्म होती है is called mesoderm in between the ectoderm and the endoderm. See, in diploblastic animals, the endoderm and the ectoderm, in between both these layer, a central developing embryo of the third germinal layer is present, which is called as mesoderm. See here, in this slide, mesoderm is present, and this type of the animal is called as ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. अभी ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. एंड दिस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जांपल कौन सा हो गया, प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स. सारे के सारे केस में आते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीलियम. And presence or absence of the cavity between the body wall and the gut wall is very important. अभी क्या होता है, एक कैविटी जो प्रेजेंट होती है और absent भी होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड दी गट वॉल. जो इंटेस्टाइन होता है उसका जो गट होता है उसकी वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट भी होती है और जो अब्सेंट भी होती है. ये इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस. एंड दी बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म्स इज कॉल्ड एज क्विलम. और जो बॉडी कैविटी जिस एनिमल्स में प्रेजेंट होती है उसको लाइनिंग होता है बाय मेसोडर्म्स. इट इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म्स, की कवरिंग होती है मेसोडर्म्स से, which is called as cilium. इसको क्या बोलेंगे, इसको cilium. And animal possessing the ciliums are called as coelomates. और ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे coelomates. और जिसमें भी ये एनिमल्स में कैविटी कवर्ड होती है किसके साथ, lined by the mesoderms, which is this type of the animal is called as coelomates. और example annelids. और ये सारी के सारी किस पर होता है एनिमल्स, which एनिमल में, annelids, molluscus and the anthropod, echinoderms and the hemichordates and chordates all contain the cavity which is named as coeloms, and this cavity is lined by mesoderm, and this cavity is present in the some organisms or some animals which is referred as the coelomates. And इसका example क्या हो गया, annelids, molluscus, arthropods, echinoderms, hemichordates and the chordates. See here the structure or the figure of the coelom. Now see here, first one is the coelomatic animal. These are the structure of the coelomatic animals. Now next one is the some animals the body cavity is not lined by mesoderm. और कुछ एनिमल्स में कैविटी होती है बट इट इज़ नॉट लाइंड बाय द mesoderm. और किसी एनिमल में कैविटी जो होती है प्रेजेंट बट इज़ नॉट लाइंड बाय द mesoderm. इंस्टेड द mesoderm इज प्रेजेंट आ स्कैटर्ड पाउचेस. और mesoderm की बजाय वहाँ पर क्या होते हैं, पाउचेस शेप्स, राउंडेड पाउचेस शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पाउच के जैसा इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. किसके लाइन के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म लाइन के बीच में. सी दिस वन इज द एंडोडर्म एंड दिस वन इज द ectoderm, and between this ectoderm and endoderm lining of mesoderms are not present, and
except these mesoderms or instead this mesoderm lining scattered pouches are present. ऐसे scattered pouches होते हैं present, which is called as, such body is called as pseudosolium. इसको बोलेंगे pseudosolium. And this animal possessing that are called as pseudocoelomates. और ऐसे एनिमल जिसमें सारा का सारा स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है उसको बोलेंगे pseudocoelomates. मीन्स कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट होता है ये? एस्कीहेलमिन्थेस, मीन्स एस्कीहेलमिन्थेस. नाउ सी हियर, सी द फिगर. pseudocoelomates. In the pseudocoelomates, this one is the outer layer, this one is the inner layer, is endoderm, and this is the ectoderm, and in between the ectoderm and the endoderm the pouches, scattered pouches are present. These are the scattered pouches, and this type of body is called as the cecocoelom, and this animal is called as the cecocoelomate. Understand all of you? Now see here, next one, the animals in which the body cavity is absent. अभी जो एनिमल में बॉडी कैविटी होती ही नहीं, which type of the body cavity पढ़े थे ना हमने अभी? कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. किधर होती है कैविटी? बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. ये कैविटी दोनों के बीच में जो जगह होती है कैविटी होती है, ये वाली कैविटी absent होती है इन सम एनिमल्स इज कॉल्ड एज acoelomates. और ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे acoelomates. एंड एग्जाम्पल ऑफ द acoelomates आर दी platyhelminthes. और इसका एग्जाम्पल platyhelminthes. So now see figure, see here, this one is the ectoderm, this one is the endoderm. और दोनों के बीच में कोई खाली जगह दिख रही है आपको? नो, it is filled with the another things. That's why this is called as acoelomates. क्या बोलेंगे इसको? acoelomates. Understand all of you? Now see here, our next topic is segmentation. What is segmentation? In some animals the body is externally and internally divided into segments. और बॉडी कैसे होती है? अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है. See, this one is the structure and these segments are divided. ऐसे आउटर सेगमेंट्स के तौर पर टुकड़े 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 में बॉडी डिवाइड होती है with a serial repetition of at least some organs. और एक ही ऑर्गन को सेम रिपीटेशन होता है. This one is one segment, this one is another segment, this one is another segment. Body is divided into a many segment, either externally or internally, दोनों भी, अंदर से भी बाहर से भी, with a serial repetition. और एक जैसा रिपीटेशन चलता रहता है at least some organs में. फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म, है ना, हम अर्थवर्म को देखें कैसी होती है उसकी बॉडी, किस टाइप कैसी लाइक की होती है. बॉडी में ऐसे सेगमेंट होते हैं एक्सटर्नली. द बॉडी शोज दिस पैटर्न इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. और ऐसी बॉडी जो शो करती है पैटर्न, इसको बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन. एंड द फिनोमिनन इज नोन एज मेटामेरिज्म. और इसके फिनोमिनन को बोलेंगे मेटामेरिज्म. अंडरस्टैंड? द सेगमेंटेशन ऑफ द body either externally or internally with a serial repetition at least in one organ. Example, in earthworm the body shows this pattern is called as the metameric segmentation and the phenomenon is known as the metamerism. Understand? Now next topic is notochord. And what is notochord? Notochord is a mesodermally derived rod-like structure. notochord एक ऐसा derived structure है mesodermally. अभी हमने देखे थे जाइगोट से क्या होता है बॉडी में? एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर इस फॉर्म होता है. एंड एट दिस एम्ब्रियोनिक स्टेज द मेसोडर्म्स, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर किस में डिवाइड होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म. All these type from this mesoderm layer the notochord is derived. और इससे mesoderm से notochord is निकल कर आता है, फॉर्म होता है. दिस mesodermic derived rod like structure, इससे क्या होता है? एक rod like structure ड्राइव होता है, फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. कब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एनिमल्स में फॉर्म होता है एट द डॉर्सल साइड. डॉर्सल साइड मतलब एट द बैक साइड, पीछे की तरफ. एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड एज कॉर्डेट. और एनिमल्स जिसमें ये वाला नोटोकॉर्ड होता है इसको बोलेंगे कॉर्डेट्स. एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, और ऐसे एनिमल जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं होता है नोटोकॉर्ड का, इसको बोलेंगे विच इज कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स. एग्जाम्पल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स.